IIM K BMS-AT, which is the entrance exam for BMS program at IIM Kozhikode, is going to be conducted on 22nd of June 2025. We are coming up with a crash course wherein we will be covering the whole syllabus that is going to be asked in the exam. This crash course is going to have 30 sessions and each session will be delivered to you on this YouTube channel itself daily at 9 p.m. After this crash course is done, we will be providing you with the workshops that will definitely help you train for the exam. As of now, we know that the exam is going to have only QA section and VA section. There is no LR section asked in the exam. But the paper pattern of the exam is not known. As soon as we come to know about the paper pattern, we will definitely deliver 3 to 5 mock tests to you guys as well. So make sure that you subscribe to this channel and inform your friends that this course has started and they can benefit from it. And now let us start learning. In this video, we are going to look at the basic concepts of averages, mixtures and alligations. तो पहले तो averages देखते हैं. Average is sum of all the quantities upon number of quantities. Number of quantities. ठीक है ना? So, मतलब average, let us say average is equal to sum of all the quantities upon number of quantities. So sum of all the quantities is average into number of quantities. ऐसा भी होता है. ठीक है ना? तो first we are going to solve all the averages question. फिर mixture alligation का concept समझेंगे. तो the average age of group of students is 16 years. है ना? तो average है 16 years. है ना? Students. Let us say number of students n. If a 66-year-old teacher joins the group, है ना? तो teacher 66 years old. Number of teachers कितने रहेंगे? 1. The average increases by 1 year. ठीक है ना? तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का एवरेज कितना हो जाएगा? 1 ईयर. तो एक चीज अपने को समझना पड़ेगा, एवरेज हो जाए, इट विल इंक्रीज बाय 1 ईयर. तो जो 16 का एवरेज था वो 17 हो गया एंड नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए? n+1. ठीक है ना? तो सम इधर कितना था? सम ऑफ ages of all the students will be average into number of students, है ना? Average into number of students will give me the sum, which is 16, and sum of the age of the teacher कितना रहेगा? 66 into 1, which is 66, and ये 17 into n+1 ऐसा है ये. तो 17 into n+1 ऐसा है ना? सिंपल ये ऐसा कर दो, इक्वेट कर दो. या फिर sum of 16 students will be 69. ठीक है? तो अभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का अगर मेरे को एवरेज निकालना है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का मेरे को अगर एवरेज निकालना है, that will be average is equal to sum of the ages of the students plus that of the teacher and number of students कितने हैं, number of members कितने हैं, n+1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17n plus 17 is equal to 16n plus 66. 16n इधर आएगा तो n is equal to 49. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज 49. इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन. इन अ क्लास देयर आर 90 स्टूडेंट्स, 30 ऑफ देम आर बॉयज. ठीक है? तो बॉयज नंबर कितने हैं? 30. तो गर्ल्स कितने रहेंगे? 60. सिंपल है, टोटल 90 स्टूडेंट्स है. द एवरेज मार्क्स इन टेस्ट इज 75. एवरेज मार्क्स, है ना? एंड ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज कितना है? 75. एवरेज कितना है? 75. द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द टेस्ट इज 90. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द टेस्ट, है ना? बॉयज का एवरेज मार्क्स निकालना है. बॉयज का एवरेज मार्क्स है लेट अस से 8. टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स है कितने? 90, है ना? तो
sum of the boys will be average into number of boys. Sum of the girls will be, है ना, sum upon number of girls is 60, जिससे एवरेज आ रहा है उनका 90, तो सम ऑफ द गर्ल्स कितना आ जाएगा 60, 90 इंटू 60, 90 इंटू 60, ठीक है। एंड ओवरऑल सम कितना आ रहा है ना, सम ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, द एवरेज इज 75, नो, तो सम ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स is equal to 90 into number of ओवरऑल एवरेज कितना है 75, है ना। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था अलग तरीके से किया था, ये क्वेश्चन देखो, ये a प्लस 30, मतलब ये बॉयज का टोटल 30a, ये गर्ल्स का टोटल 90 इंटू 60, दिट इज 5400 इज इक्वल टू 90 इंटू 75, है ना। तो 90 इंटू 75 कितना होगा यार, 75 नाइन जा करना है 750, 675, तो 6750 आ जाएगा, है ना। तो 30a इज इक्वल टू, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 1, फिर ये 0, ये 0, एवरेज कितना आ जाएगा 135/3, दैट इज 45, तो बॉयज का एवरेज आ जाएगा हमारा 45। सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, the average age of the boys in the class is 10 years, ठीक है। एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 10 years, ठीक है। बॉयज का एवरेज कितना है 10 years। द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, है ना, गर्ल्स का एवरेज एज इज 8 years। देयर आर 50% मोर बॉयज देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर लेट अस से n, तो बॉयज कितने रह गए 1.5 है ना। number of boys are 50% more than the number of girls, which means boys is equal to girls plus 50% more, है ना। girls plus 50 percentage of girls, which is girls common 1 plus 50 percentage is 1/2, 1/2 is nothing but 1 plus 1/2 is 3/2, that is 1.5, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द क्लास, ठीक है। तो टोटल सम, मतलब बॉयज का सम कितना हो जाएगा 10 इंटू 50, 1.5n, है ना। एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स विल गिव मी द सम, नो, सो दिस इज 15n, दिस इज 8n, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा 15n प्लस 8n अपॉन 1.5n प्लस n, है ना। दिस इज द एवरेज, दैट इज 23n अपॉन 2.5n, which is 2, n तो कट ही गया, 230/25, which is 9.2, ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा 9.2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना है। फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल्स द एवरेज वेट ऑफ, equals the average of the average weight of the boys and that of the girls, okay। average weight of the students is equal to average weight of the boys and average weight of the girls. Which of the following holds true? The number of boys and number of girls are equal, the average weights of boys and girls are equal, at least one of A and B, है ना। अभी average number of students are made of boys and girls, right, है ना। तो अभी ये इक्वल टू एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स कब आएगा, ओनली व्हेन ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए जी, ऐसा हो गया तब, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका सम रहेगा एस बी अपॉन नंबर ऑफ बॉयज रहेगी लेट अस से एन बी, इनका सम रहेगा एस जी, नंबर ऑफ गर्ल्स रहेगी एन जी, ठीक है ना।
तो इक्वल आने के लिए एक तो उनका एवरेज इक्वल रहना चाहिए, है ना। एक तो उनका एवरेज इक्वल रहना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल रहने चाहिए। तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल बी द आंसर। क्यों? देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज सेम है, मतलब सम इनका 100 है, इनका 150 है ना। एंड ये 20 है, ये 20 है, तो ये 100/20 एंड ये 150/20, है ना। तो ये इतना आ जाएगा, है ना। विच इज नथिंग बट, इनका एवरेज कितना है 5 का, इनका एवरेज कितना है 7.5 का, तो ये बराबर 250/40, ये बराबर 6.25 आएगा, विच इज एवरेज ऑफ 5 एंड 7.5, है ना। और दी अदर थिंग कैन बी, इन दोनों का एवरेज इक्वल रहे, है ना, ये दोनों इक्वल वैल्यू है, तो उसका एवरेज विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन टू, विच इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स। वो एक केस हो सकता है। सो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैज टू बी द आंसर। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? A vessel has 20 liters of milk and water having 60% milk। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको एलिगेशंस क्रॉस का कंसेप्ट समझना होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कैसे रहेगा देखते हैं। लेट अस से देयर आर टू वैरायटीज ऑफ मिल्क, है ना। फर्स्ट वन कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी पर लीटर, एंड दूसरा वाला 45 रुपीज पर लीटर। ठीक है, लेट अस से दिस इज P1, दिस इज P2। पहले से हमने 30 लीटर्स की क्वांटिटी लिया है, दूसरी की हमने 20 लीटर्स की क्वांटिटी लिया है। लेट अस से Q1 एंड Q2। नाउ आई हैव मिक्स्ड द टू वैरायटीज, मतलब ये 30 लीटर एंड 20 लीटर्स मिक्स कर दिया है, तो मेरे को अभी उनका एवरेज प्राइस चाहिए। एवरेज प्राइस क्या रहेगा ऑफ दैट मिक्सचर, मिक्सचर का जो एवरेज प्राइस रहेगा वो पता करना है। इट विल बी टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, है ना। इट विल बी टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, है ना। अभी टोटल प्राइस पहले दुकान में 50 पर लीटर है, ऐसे 30 लीटर्स लिए तो 1500 रुपये खर्च किए। दूसरे दुकान में 45 रुपीज पर लीटर है, 20 लीटर लिया है, तो 900 रुपीज खर्च किए। तो टोटल प्राइस का हमने कितना स्पेंड किया? 1500 प्लस 900, दैट इज 2400। एंड टोटल क्वांटिटी कितना लिया? 30 प्लस 20, दैट इज 50। तो ये जीरो, ये जीरो, 48 रुपीज पर लीटर विल बी दी एवरेज प्राइस। तो ये एवरेज प्राइस इज लेटेस्ट से पी। हमने निकाला कैसे पी? पी हमने निकाला P1 Q1 प्लस P2 Q2 ऑल अपॉन Q1 प्लस Q2, है ना। ऑल अपॉन Q1 प्लस Q2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द एवरेज। अभी इसी का यूज लेके हम एलिगेशंस क्रॉस बनाएंगे। लेट अस से देयर आर टू वैरायटीज ऑफ मिल्क, एक का प्राइस है 50 रुपीज पर लीटर, दूसरे का प्राइस है 45 रुपीज पर लीटर। In what quantity they should be mixed? In what quantity should they be mixed such that overall average price is 46.5 rupees per liter, है ना। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? PQ1 प्लस PQ2 इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। ठीक है, ये Q1 एक तरफ लाया तो Q1 कॉमन आ जाएगा, P माइनस P1, एंड ये Q2 एक तरफ लाया तो ये P2 माइनस P। ठीक है ना। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1 अपॉन P माइनस P1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर एलिगेशन क्रॉस। ध्यान से देखो, ये Q1 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को P2 और P का डिफरेंस चाहिए, एंड ये Q2 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को P एंड P1 का डिफरेंस चाहिए। तो लिखो, दो वैरायटीज ऑफ मिल्क है आपके पास, इसका प्राइस कितना है 50, इसका प्राइस कितना है 45, एवरेज प्राइस कितना चाहिए 46.5।
एवरेज प्राइस कितना चाहिए 46.5, तो ये 1.5 आएगा इधर, एंड इधर एवरेज प्राइस कितना चाहिए 3.5, तो ये 3.5 आएगा इधर। अभी 1.5 3.5 रेशो कितना आ जाएगा 15:35, which is 3:7. This is the ratio of the quantity Q1 and Q2, है ना। ये 1.5 is what P and P2 का डिफरेंस, P and P2 का डिफरेंस, and 3.5 is what P and P1 का डिफरेंस, ठीक है ना। So this is how you need to do it. ऐसा आपका एवरेज प्राइस आपको निकालना है, एंड दिस इज योर एलिगेशंस क्रॉस, है ना। नाउ we'll be applying or using this allegations cross, but before that you write down everything, and before that we'll be seeing where all can allegations cross be applied, ठीक है। So it can be applied on mixture of two quantities, है ना। It means it can be applied on mixture of two quantities, and those two quantities can be milk plus milk, milk plus water, milk plus alcohol, alcohol plus water, है ना। लिक्विड्स में जा सकते हैं, या फिर शुगर एंड व्हीट, है ना, शुगर एंड राइस, व्हीट एंड राइस, है ना। या फिर इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन एजेस, है ना। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन मार्क्स, ठीक है ना। सो ऑल दीज कैन बी अप्लाइड, but it has to be mixture of only two quantities, है ना। it has to be the mixture of two quantities only, ठीक है ना। तो कैसे रहेंगे वो टू क्वांटिटीज वो बताता हूँ, ठीक है। बट वेयर इट कैन नॉट बी अप्लाइड, वो देखते हैं पहले। फर्स्ट केस वेयर इट कैन नॉट बी अप्लाइड इज मिक्सचर ऑफ थ्री क्वांटिटीज, तीन क्वांटिटीज का मिक्सचर है, तो हमको रेगुलर एवरेज वाला मेथड लेना होगा। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सेपरेशन, है ना। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सेपरेशन, सेपरेशन वाले केसेस में भी हम एलिगेशंस क्रॉस नहीं लगा पाएंगे, है ना। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम प्रॉपरली एलिगेशंस क्रॉस लगाएंगे। देखते हैं, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। दीज फोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व अगेन, but with allegations cross, to check whether it can be applied or not. The average age of group of students is 16 years. तो students है, let us say n students है, उनका average age है 16. A 66-year-old teacher, और teacher जिसका एक ही teacher है and उसका age है 66, she joins and the average increases by 1, तो overall average हो गया 17, है ना। It is a mixture of two quantities, students and teachers का mixture किया है। What is the number of students in the group? Number of students in the group. तो ये डिफरेंस कितना आएगा 49 का डिफरेंस रहेगा। ये डिफरेंस कितने का आएगा 1 का डिफरेंस रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स। सो n की वैल्यू कितनी आएगी 49, है ना। एलिगेशंस क्रॉस कैन बी अप्लाइड ऑन एजेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In a class there are 90 students, 30 of them are boys, तो boys कितने हैं 30। Average marks in the test, तो girls कितनी रहेगी 90। Average marks in the test are 75, average marks of the girls in the test is 90. Find the average marks of the boys in the test, तो boys का average marks is let us say 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम एलिगेशंस क्रॉस लगा सकते हैं, बिकॉज गर्ल्स के एवरेज मार्क्स एंड बॉयज के एवरेज मार्क्स का मिक्सचर मिला के ही तो ओवरऑल क्लास का एवरेज मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है डिफरेंस लो इधर, है ना। डिफरेंस कितना है 15 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 75 माइनस ए का, है ना। देयर इज अ वन beautiful thing about average, that average is always between higher quantity and lower quantity. So if the average is 75, higher quantity is 90, the other quantity A will be definitely less than 75. And that is why we have taken 75 minus 8, not A minus 75, because we want it to be positive.
है ना। एवरेज की प्यारी सी प्रॉपर्टी कि वो हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू के बीच में ही आता है हमेशा। ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज विच मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो वही लिखना है अपने को, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 30/60, है ना। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 90 है, ये कितने हैं, गर्ल्स कितनी है 60, है ना। यहाँ पे भी हमारा 60 आएगा, विच इज इक्वल टू 15/75 माइनस ए। तो दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, 75 माइनस ए इज इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू 75 माइनस 30 इज 45। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हैं, 45। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 10 years, तो बॉयज का एवरेज इज 10, एंड एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज 8 years, तो गर्ल्स का 8। देयर आर 50% मोर बॉयज, इफ देयर आर मतलब एन गर्ल्स है तो 1.5 टाइम्स बॉयज है ना। ये कैलकुलेशन पहले बताया मैंने। देयर आर 50% मोर बॉयज देन गर्ल्स इन द क्लास, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ठीक है, तो लेट अस से एवरेज एज इज 8। क्या डिफरेंस आएगा, this will be 10 minus a, this will be a minus 8, because a will be the middle value, ठीक है, and this is going to be the ratio of number of students, that is number of boys and number of girls. So 1.5 n upon n is equal to a minus 8 upon 10 minus a, है ना। n n का टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा तो 15 minus 1.5 a is equal to a minus 8, है ना। 15, तो ये इधर आएगा 23 आ जाएगा, और ये 1.5, तो ये 2.5 ए आ जाएगा, विच इज ए इज इक्वल टू 23/2.5, विच इज ए इज इक्वल टू 230/25, विच इज 9.2। एग्जैक्ट वैसे के वैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो एलिगेशंस फर्स्ट वी हैव अप्लाइड ऑन एज, then here we have applied on marks, here we are again applied on age। ठीक है, now we are going to apply term weight as well। The average weight of all the students in the class, now average of the students is equal to average of the average weight of boys and that of the girls। ठीक है ना, तो ये boys ले लो, यहाँ पे girls ले लो, यहाँ पे average of boys ले लिया, यहाँ पे average of girls ले लिया, है ना। सो इससे हमारा जो भी ये चेंजेस आएंगे, ये कैसे आएंगे, एवरेज ऑफ students minus average of girls, average of boys minus average of boys minus average of students, ऐसा आएगा। So this two should be equal, है ना। This two should be equal, only then this equation can be obtained, है ना। मतलब AS minus AG should be equal to AB minus AS। तो AS इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AS इज इक्वल टू AG प्लस AB, है ना। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन लाने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल रहने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल रहने चाहिए, है ना। एंड AS इज इक्वल टू AG प्लस AB/2, है ना। तो एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल रहने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल रहने चाहिए, या फिर AG शुड बी इक्वल टू AB, AG शुड बी इक्वल टू AB, ये भी चल जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी, एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ क्वेश्चन। A vessel has 20 liters of mixture of milk and water having 60% milk। तो टोटल है 20 लीटर, जिसमें मिल्क है 60%, तो ऑब्वियसली वाटर है 40%। तो कितना हो जाएगा ये, 12 का मिल्क हो जाएगा, 8 का वाटर हो जाएगा, है ना, बराबर 60% एंड 40% निकाला। 5 liters of pure milk is added to the mixture, 5 liters of pure milk is added to the mixture। अभी ये कितना हो जाएगा, 17 हो गया, ये 8 है, ओवरऑल 25 है ना। मिल्क प्लस वाटर 25 है। परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन,
तो मिल्क अपॉन टोटल इंटू 100% करना है. सो मिल्क इज 17, टोटल इज 25 इंटू 100%. So 25 ones are, this is 25, fours are 17 into 4 is 68%. Next is sixth question. In what ratio two kinds of coffee which cost 80 per kg and 108 per kg we mix such that the resultant mixture costs 96 per kg? सिंपल है, दो वैरायटीज ऑफ कॉफी है, एक का 80 है, एक का 108 है. रिजल्टेंट मिक्सचर इज 96. तो किस रेशो में जाना चाहिए? एलिगेशन क्रॉस लगाते हैं, है ना, क्वांटिटी का ही रेशो देता है ना एलिगेशन क्रॉस. तो 12 आया और ये 16 आया, तो 3:4 आ जाएगा. ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गया. देन सेवेंथ क्वेश्चन आएगा. A trader mixes two varieties of rice, one costing rupees 15 per kg and other 25 per kg, so that by selling the mixture at rupees 30, he makes a profit. What is the ratio? ठीक है, पहला वाला है 15 का, दूसरा वाला है 25 का. So that by selling, अभी ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे एवरेज प्राइस कुछ पता चलनी चाहिए. तो ओवरऑल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस इज ए, है ना. सो दैट बाय सेलिंग एट ₹30 इज मेकिंग अ प्रॉफिट. तो कितना प्रॉफिट हुआ यही नहीं पता, तो किस रेशो में, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ ये पता चल गया तो मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, एंड ए की वैल्यू निकालूंगा तो मैं ये रेशो भी निकालूंगा, है ना. बट प्रॉफिट ही दिया नहीं है ना, प्रॉफिट ही दिया नहीं है, इसलिए आंसर इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. मूविंग फॉरवर्ड टू 8th क्वेश्चन. Two solutions of sulfuric acid are mixed in the ratio 2:3. The concentration of sulfuric acid in the first and second solution are this much. Find the concentration of cell. ठीक है, पहला दूसरा इनका क्वांटिटी का रेशो 2:3. पहले में 10%, दूसरे में 20%. व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? तो C परसेंटेज आएगा. लेट अस से ये डिफरेंस कितना है? 20 माइनस C परसेंटेज. ये डिफरेंस कितना है? C minus 10%. This is the ratio of quantity which is 2:3. So 20 minus C percentage upon C minus 10 percentage is equal to 2/3. तो ये परसेंटेज कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर लाएंगे तो 60 minus 3C is equal to 2C minus 20. तो -20 इधर, ये 3C इधर आया तो 5C, तो C is equal to 16. Find the concentration of sulfuric acid in the final mixture 16%. ऐसे हमारा यूज है एलिगेशन क्रॉस का. ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन. The average of n numbers is A if one of the numbers y is replaced by x, है ना. तो number of numbers are n, उनका एवरेज इज ए, उनका सम कितना हो जाएगा? एन ए. ठीक है, इफ y इज रिप्लेस बाय x द एवरेज बिकम्स b. ठीक है ना, तो ये जो सम है इसमें से y इज रिप्लेस्ड बाय x. ठीक है ना, तो y निकल गया एंड x आ गया, है ना. y इज रिप्लेस्ड बाय x, है ना, द एवरेज बिकम्स b, है ना. सो दिस इज माय न्यू सम ना, ये ओल्ड सम है, उसमें से y निकाल दिया, x ला के लेके आ गए, है ना. उसमें से y निकाल दिया और x लेके आ गए अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स तो अभी भी n ही है ना. नंबर ऑफ नंबर्स तो अभी भी n ही है, जिससे मेरे को नया एवरेज मिलता है ना. नंबर ऑफ नंबर्स अभी भी n क्यों है? क्योंकि y निकाला है, x लेके आ गए उसकी जगह. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज द रेशियो द एवरेज बिकम्स b. तो इसको सॉल्व करना है. एन ए माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एन बी, है ना. एन ए को इधर लेके आएंगे तो एन कॉमन, बी माइनस ए, एंड यहाँ पे एक्स माइनस वाई. एन की वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए. 1/n की वैल्यू निकालना है. 1/n विल बी बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई.
तो अच्छा ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसको दोनों को, और मैंने अगर a माइनस बी किया है तो नीचे y माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो वो बराबर a माइनस बी y माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। Just before the last match in a season, the total number of runs scored by Sachin added up to 2100। ठीक है, सचिन के लास्ट मैच के पहले 2100 रन्स थे। ठीक है, इन द लास्ट मैच ही स्कोर्ड दिस मच, एंड नंबर ऑफ मैचेस आप पकड़ के चलो एन। ठीक है, लास्ट मैच ही स्कोर्ड 101 रन्स, तो ये 2100 एंड 101 रन्स ही हैज स्कोर्ड। नंबर एज अ रिजल्ट हिज एवरेज स्कोर वेंट अप बाय 1 रन। ठीक है, पहले उसका एवरेज कितना था ए, विच इज 2100 बाय एन। एज अ रिजल्ट इसमें वो एक मैच भी इंक्रीज हो गई है ना, 2100 लास्ट मैच के रन, एन प्लस वन, क्योंकि लास्ट मैच प्लस वन मैच है ना, तो इससे उसका एवरेज ए प्लस वन हो गया। ठीक है ना, सो दिस इज 2100 प्लस वन, मतलब ये 2201 विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एन ए प्लस वन। तो एन ए की वैल्यू कितनी है, 2100 इज इक्वल टू एन ए। सो दिस इज 2201 इज इक्वल टू 2100 प्लस एन प्लस ए प्लस वन। ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन प्लस ए विल बी, 2100 किया तो 101 बचेगा, एंड वन किया तो 100 बचेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय सचिन इन दैट टूर्नामेंट। तो एन ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2100 बाय एन इज इक्वल टू 100, है ना। सिंपली सब्स्टिट्यूट द ऑप्शंस, 31 एंड 71 विल बोथ सेटिस्फाई द ऑप्शन, है ना। यहाँ पे अभी कैलकुलेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कर पाओगे। कैसे करना है, बस ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। योर आंसर इज आइदर 31 और 71। योर आंसर इज आइदर 31 और 71। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको बस। ठीक है, 11th क्वेश्चन। Ajay attempted to add 10 two-digit numbers. Of one of them, A was the reverse of the other number. ठीक है, A was replaced by another two-digit number B, and reverse of A was replaced by the reverse of B, and the average was found to be 2.2 more. ठीक है ना, तो A is a number, let us say XY, and B is A is A reverse, A dash is the other number जिसका है YX, है ना, रिवर्स है ना ये। It is A is replaced by B, let us say PQ, and so B dash will be reverse of B, which is QP. ठीक है, so Ajay attempted to add 10 two-digit numbers. So let us say sum of 10 numbers is S10. One of them, A, was the reverse of the other. ठीक है, if A is replaced by another number, another two-digit number B, है ना, तो A निकल गया, उसके जगह B आ गया, and reverse of A is replaced by reverse of B. Reverse of A is replaced by, so reverse of A निकाल दिया, it is replaced by reverse of B. Still the number of numbers are 10 only. This is going to give that the average was found to be 2.2 more. तो average जो है वो 2.2 more हो गया है। Initial average क्या था, sum of 10 numbers upon 10 is equal to average ना, initial average था। ठीक है, तो अभी this is sum of 10 numbers minus of A plus A dash and plus B dash, ऐसा है, which is equal to 10A plus 22, है ना, 10A plus 22, yes or no? But this sum of 10 numbers is 10A, sum of 10 numbers is 10A, तो ये तो गया। So B plus B dash minus A plus A dash is equal to 22। अभी देखते हैं पूछा क्या,
sum of the digits in B exceeds the sum of the digits in A by how much? तो sum of the digits in B exceeds the sum of the digits in A by how much? ये पूछा है. ठीक है. अभी sum of, अभी इसको मैं B को लिख क्या सकता हूँ? B को मैं लिख सकता हूँ 10P plus Q, है ना? उस हिसाब से तो 10P plus Q, अच्छा 10P plus Q plus 10Q plus P, है ना? रिवर्स को कैसे लिखूंगा मैं? 10Q plus P माइनस 10x plus y plus 10y plus x इज इक्वल टू 22. क्या आएगा ये? 11P आ जाएगा ये, और ये पकड़ के, एंड ये 11Q आ जाएगा माइनस 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 22. 11 से डिवाइड कर देंगे तो P प्लस Q इंटू P इंटू माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 2 ना. वही पूछा है ना? उसका डिफरेंस इट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है ना? 12th क्वेश्चन देखते हैं. There are n students in a class. Their class teacher gave them the task of finding the average of first 10 natural numbers, and each of them left out a different number and found out the average of the remaining numbers. ठीक है. The average of the averages obtained by all the students was 21. Find n. ठीक है ना? टीचर ने क्या टास्क दिया था कि यार तुम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n करो, n डिवाइडेड बाय n करो और ऐसा एवरेज निकालो. फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n किया और माइनस 1 किया, और नीचे भी n माइनस 1 किया, है ना? सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे एवरेज निकाले ना उन्होंने, है ना? ऐसे एवरेज निकाले उन्होंने. 3 अप टू n किया, माइनस 2 किया, और ये डिवाइडेड बाय n माइनस 1 किया. ऐसे nth स्टूडेंट ने क्या किया होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस n किया, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 किया, है ना? ठीक है. द टीचर गेव देम अ टास्क ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय n, ऐसा एवरेज आएगा. बट व्हाट दे डिड, they each of them left out a different number and found the average of the remaining numbers. तो पहले बंदे ने 1 एलिमिनेट किया एंड बचे हुए नंबर्स का एवरेज निकाला. दूसरे बंदे ने 1 एलिमिनेट किया एंड बचे हुए नंबर्स का निकाला. ऐसे किया. The average of the averages obtained by all the students was 21. Find n. Average of averages मतलब कैसे? इन सब का एडिशन किया एंड ऑल डिवाइडेड बाय n किया, है ना? इन सब का एडिशन किया एंड ऑल डिवाइडेड बाय n किया. तो इसमें मेरा ये क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये n टाइम्स आएगा, है ना? ये n टाइम्स आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये कितना आएगा? तो ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये भी अप टू n टाइम्स आएगा. All of that will be divided by n minus 1, and all of this will be divided by n, and this is the overall average which is equal to 20. सही है. ये n minus 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना? ये वाला n minus 1 कॉमन निकल दिया, तो ये ओवरऑल n minus 1 एंड देन डिवाइडेड बाय n, बिकॉज इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n कर रहा हूं, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट n इनटू, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n इनटू n प्लस 1 by 2 माइनस ये कितना आ जाएगा? n इनटू n प्लस 1 by 2, है ना? दिस इज n इनटू n प्लस 1 by 2 अपॉन n इनटू n माइनस 1, n इनटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, है ना? इज इक्वल टू 21 आ जाएगा. ठीक है. अभी इन दो टर्म्स में से n इंटू एन प्लस 1 by 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा. आई होप आप लिखते जा रहे हैं.
ठीक है, तो अभी इसमें से n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। n इंटू एन प्लस वन बाई टू इतना कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा क्या? n माइनस वन बचेगा ना, ये n माइनस वन होल अपॉन n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो ये n-1 गया, ये n गया। सो n प्लस वन इज इक्वल टू 21। n प्लस वन बाई टू इज 21। सो n प्लस वन इज 42। सो n इज इक्वल टू 41। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, 41। ठीक है ना? मूविंग फॉरवर्ड टू 13th क्वेश्चन। 13th question. Two alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 4:9। तो कॉपर एंड जिंक ये पहले वाले में 4:9 है, दूसरे वाले में भी कॉपर रेशियो इज 5:6। इफ इक्वल वेट्स ऑफ द टू आर मेल्टेड टुगेदर, ठीक है ना? तो अभी आप यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 13 पार्ट्स है ना, 4 and 9। यहाँ पे कितने हैं? 5 and 6, 11 पार्ट्स है। तो आप 13 एंड 11 का एलसीएम लेके भी कोई क्वांटिटी ले सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा सिंपल 10 kgs 10 kgs ले लो, है ना? 10 kgs 10 kgs ले लो, जिससे आपका एंड में जो मतलब एलसीएम निकालने का काम है वो एंड में आएगा। ठीक है? या फिर इधर कितने 13 पार्ट्स है, इधर कितने 11 पार्ट्स। ठीक है ना? तो 13 and 11 ये कितना आ जाएगा? 143। दिस इज ऑल्सो 143। ठीक है ना? तो उसमें से 4 पार्ट्स एंड 9 पार्ट्स, तो ये 4x 9x आ जाएगा। सो 13x इज इक्वल टू 143, x इज इक्वल टू 11। तो इसके 44 kgs आएंगे, इसके 99 kgs आएंगे। ये 5:6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5y एंड 6y, है ना? तो टोटल 11y, 11y इज इक्वल टू 143। तो y इज इक्वल टू 13। तो 5 into 13 65, 6 into 13 78 kgs आ जाएंगे। नाउ दे आर मेल्टेड एंड मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड alloy। तो थर्ड alloy में कितना आ जाएगा? और कॉपर एंड जिंक, कॉपर कितना आ जाएगा? 44 प्लस 65 इज 109 and 99 plus 78 is 177. This will be the ratio, 109:177. Moving forward to 14th question. A vessel has 10 ml of solution of milk and water containing 20% milk. ठीक है, x ml of milk is was added to the vessel। ठीक है, मिल्क है, वाटर है, टोटल है, तो 10 ml है, इसमें 20% मिल्क है, मतलब 2 का मिल्क है एंड 8 का वाटर। x ml of milk was added to the mix। ये x ml of milk is added, तो ये यहाँ पे भी x ओवरऑल ऐड हो जाएगा। सच added to the vessel to reverse the ratio। So initially this ratio is 1:4। अभी ये ratio 2 plus x is to 8। This ratio should be 4:1। So 2 plus x upon 8, this ratio should be 4/1। तो 2 plus x is equal to 32, x is equal to 2, है ना? x is equal to in fact 30, x is equal to 30। तो अभी क्या है ये? 32:8 है ना? Now YML of water is added to the vessel to reverse the ratio again। YML of water is added to the ये, तो अभी 32:8 plus y है, and this is the reversal of the ratios, मतलब ये 1:4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 32/8 plus y is equal to 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 into 4 कितना होता है? तो है 120, 128 is equal to 8 plus y, which will say y is equal to 120। ठीक है ना? तो x and y, they are asking us to find out x plus y। x is 30, y is 120, x plus y will be 150। सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट 15th question. Raju bought 40 kg of a certain variety of coffee powder costing this much and 60 kg of another coffee powder costing this much. He mixed the two varieties of coffee powder and sold 4/5 at this and the rest at this. The overall profit percentage made by Raju. सिंपल सा क्वेश्चन है ना. दो कॉफी पाउडर है, पहले की 40 किलो है एंड उसका प्राइस है 240 पर केजी. दूसरे का कितना है, 60 केजीज लाया है, इसका प्राइस है अनदर वैरायटी ऑफ कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 360 पर केजी. ठीक है, ही मिक्स द टू, तो एवरेज प्राइस आ जाएगा कुछ तो पी. सो दिस विल बी 360 माइनस पी एंड पी विल बी नाउ ग्रेटर देन 240, तो पी माइनस 240. दिस इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी विच इज 40:60. So 360 minus P upon P minus 240 is equal to 40 by 60, that is 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 1080 माइनस 3P इज इक्वल टू 2P माइनस 480. माइनस 480 इधर आएगा तो 1560 होगा एंड ये 3P इधर जाएगा तो 5P हो जाएगा. तो P की वैल्यू 300 पर आ जाएगी. सो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है ना 100 kgs का कॉस्ट प्राइस हमारा है 312 इंटू 100 है ना, क्योंकि ये तो प्राइस पर केजी है ना हमारा. सेलिंग प्राइस के वक्त ही सोल्ड 4/5 ऑफ द मिक्सचर, मतलब उसने 80 kgs कितने में बेचा है, 360 पर केजी, तो 360 इंटू 80 में बेचा है. एंड द रेस्ट मतलब 20 kg उसने कितने में बेचा होगा, 270, तो 270 इंटू 20 आ जाएगा ये. ठीक है ना, तो 36 8 से कितना होगा 288. पहले तो इधर कितना कमाया 31200, दिस इज हिज कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस इधर कितना आएगा 36 इंटू 8 इज 288,000 एंड ये 27 इंटू 20 दैट इज 54,000. तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस 100 kg का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 5400 प्लस 28800. So this is 0, this is 0, this is 2, 1 carry, this is 9, 14, 1 carry, 34200. तो we know the cost price, we know the selling price. Profit कितना होगा 34200 माइनस 31200, that is 3000 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 31200 इंटू 100 परसेंटेज. ठीक है ना, तो ये 00 ये 00 अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास आंसर आएगा, 9.5% के आसपास आंसर है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू 16th क्वेश्चन. देयर आर टू कंटेनर्स हैविंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर. इन कंटेनर 1 द रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर is 1:2. So HCl is to H2O. It is 1:2. In container 2, the ratio of hydrochloric acid and water is 4:1. Find the amount of mixture that should be taken from container 1 in order to make 28 liters of mixture. है ना, तो ये mixture कितने का रहना चाहिए 28 liters का, containing equal amount of water and hydrochloric acid. So HCl is to H2O. This quantity should be equal, 1:1 का रेशियो रहना चाहिए. सिंपल है. एलिगेशंस क्रॉस कैन बी अप्लाइड ऑन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स ना, टोटल 3 पार्ट्स है, HCl के एक एंड हाइड्रोक्लोरिक वाटर के 2 है ना, वाटर के 2. ठीक है ना, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1/3. यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन 4/5. टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 4 पार्ट्स इसके है. ठीक है ना, एंड यहाँ पे HCl का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट HCl का. ठीक है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड, पहले इसमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1/3, दूसरे इसमें 4/5. ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन मेरे को 1/2 चाहिए. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा 4/5 माइनस 1/2 करके देखो. 4/5 माइनस 1/2 बेस में आएगा 10
8 माइनस 5, तो 3/10 का डिफरेंस आएगा। एंड दूसरे इसमें 1/2 माइनस 1/3, तो सिंपल है, 1/2 माइनस 1/3, बेस में आएगा 6, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा। सो 1:6 का रेशो 1/6 है ना। तो ओवरऑल रेशो कितना आ गया, 3/10:1/6, विच इज 18:10 का रेशो है ना। नाउ ये टोटल 28 लीटर्स का होना चाहिए, जिसमें से 18 लीटर्स कंटेनर 1 में से लेने चाहिए एंड 10 लीटर्स कंटेनर 2, बराबर टोटल भी 28 हो जाता है एंड रेशो भी मेंटेन होता है 18:10 का। तो पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर दैट शुड बी टेकन फ्रॉम कंटेनर 1 इन ऑर्डर टू मेक 28 liters of mixture containing equal amount of water and hydrochloric acid. तो कंटेनर 1 में से 18 लीटर्स लेना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन। Let us try to understand the replacement logic. Let us say 100 ml या फिर 1000 ml of pure milk is what we are taking. इसमें से 100 ml we have taken out and then 100 ml is water. ठीक है ना। Now what will be the ratio of milk and water? So this is 900 ml milk, water is 100 ml, overall total is 1000 ml. From this, let us say I withdraw 100 ml of this mixture. अभी जब मैं 100 ml of the mixture निकालूंगा, so what will happen? It will, मतलब पूरा 100 ml का water तो नहीं निकलेगा या पूरा 100 ml का milk भी नहीं निकलेगा. It will come out in the ratio of 9:1 because the ratio of milk and water is 9:1. So 90 ml of milk will be taken out and 10 ml of water will be taken out. This is 810 and 90. But then it is replaced by 100 ml of water. It is replaced by 100 ml of water. तो ओवरऑल ये 810 हो जाएगा, 7 ये 190 हो जाएगा एंड ओवरऑल क्वांटिटी 1000 ml की हो जाएगी। ठीक है, दिस विल गो ऑन। तो मतलब ये प्रोसेस होते कैसे जाएगा, मिल्क, वाटर एंड टोटल। पहले मिल्क था 1000 ml का, वाटर था 0 का, टोटल था 1000। फिर मिल्क हुआ 900 का एज यू कैन सी, वाटर हुआ 100 का, टोटल था 1000। फिर मिल्क हुआ 810 का, ये था ये हो गया 190 का एंड टोटल था 1000 अभी भी। इसके आगे और करने जाएंगे तो 729 का होगा, ये 729 तो 271, करेक्ट है, यस, एंड टोटल विल बी 1000 एंड इट विल गो ऑन. So this is the process over here. This is what is going to happen if we replace by a certain quantity every time. ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटी तो हमेशा 1000 ही रहती है, वाटर की क्वांटिटी 0, 100, 190, 271 है ना। तो देयर इज नो फिक्स्ड लॉजिक अप्लाइड ओवर हियर, है ना. But if you look at milk, milk is reducing by 10%. Milk is reducing by 10%. Why it is reducing by 10%? Because out of 1000 ml, I'm every time taking out 100 ml. So which is 10% of that. If I take out 200 ml, 200 ml, 200 ml every time, the milk quantity will depreciate by 20%. So this is the depreciating quantity in milk. In this case, this is the depreciating quantity in this case. There is a certain logic that is taking place in the depreciating quantity. Here ये depreciating quantity है ना 10 ml, 10% से depreciate हो रही है, ठीक है. Now it is depreciating by 10% because we are replacing the quantity by 10% of the volume.
ठीक है ना, अगर मैं 20% वॉल्यूम रिप्लेस करते जाऊंगा तो वो 20% से रिप्लेस होगा, ठीक है ना। सो फॉर दिस डेप्रिसिएटिंग क्वांटिटी वी हैव अ formula. Formula is final value is equal to initial value into 1 minus x by v to the power n, where f is the final value, fv is the final value, iv is the initial value, x is the quantity replaced, and v is the total volume, and n is the number of times replacement is done. ठीक है ना? So this is what this formula says. Now, if we start with pure milk, your initial quantity will be 1000 and your total quantity will be 1000, है ना? But it is not necessary that we always start with pure milk. We can start with the mixture as well. In this case, the initial quantity will be 900, but the total quantity or the volume will be 1000 ml. ठीक है ना, ये डिफरेंस है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनिशियल वैल्यू एंड वी दे विल हैव सेम वैल्यूज बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद प्योर मिल्क और प्योर अल्कोहल और प्योर वाटर, है ना। बट it is not necessary that it will always be equal. Reason being, initial value and final value will be different in the cases when we start with a mixture, something like this. And if we start from here, then this will be the initial value and this will be the volume. ठीक है ना, ये डिफरेंस समझना है। दूसरी चीज, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएटिंग क्वांटिटी, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम मिल्क इज द डेप्रिशिएटिंग क्वांटिटी, है ना। just because we are starting with pure milk, that is why it is depreciating every time. But if we start with pure water, then in that case the depreciating quantity will be pure water. ठीक है ना? So understand this formula. Let us try to solve these questions. From 90 liters of pure milk, so initial quantity, initial volume is 90, and initial value is 90. Total value, volume is also 90. है ना, because we are starting with pure milk. 9 liters are withdrawn, so x value is 9 and replaced by water. 9 liters of the mixture is withdrawn and replaced with water. Find the ratio, मतलब number of times this operation is done is 2. Find the ratio of milk and water in the present mixture. तो ये final value is initial value 90, 1 minus x value 9, volume is 90 to the power 2. So 90 minus 1 by 10. So that is 9 by 10 का square, which is 90 into 81 by 100. तो ये 0, ये 0. So this is 729 by 10, that is 72.9. है ना? This is the quantity of milk. What are they asking? The ratio of milk and water. Milk is to water ratio is 72.9 and water will be how much? 90 minus 72.9, which is 0.1. This is 7. This is 1. है ना? तो 17.1. What is the ratio? 729 is to 171. ठीक है ना? तो वो रेशियो और रिड्यूस होगा, आप करो रिड्यूस उसको। मूविंग फॉरवर्ड टू 18th क्वेश्चन। From 700 liters of milk, 70 liters are drawn and replaced with water. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू 700, x is 70, volume is also 700. 70 liters of this mixture is then again replaced, is again drawn and replaced with water, and the process is continued 2 more times. So process is continued, done once here, then it is again done and 2 more times. तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। ठीक है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नाउ। तो फाइनल वॉल्यूम पूछा है, which is initial value
into 1 minus x is 70 by 100 to the power n, which is 4. तो ये कितना हो गया? 70 by 700 ना यार, तो दिस इज 1 by 10. ठीक है ना? तो 700 into 9 by 10 to the power 9 by 10 to the power 4, which is 700 into 9 to the power 4 is 6561, 10 to the power 4 is 1000. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मल्टीप्लाई करके देखो 6561 into 7, so this is 7, then 42, 4 carry, 35, 39, 3 carry, 42, 45 है ना? तो 45927 by 100, तो फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी? 459.27 लीटर्स. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग, 459.27 लीटर्स. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू 19th क्वेश्चन. फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग ओनली अल्कोहल, मतलब प्योर अल्कोहल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. 6 liters are drawn and replaced with water, तो x is equal to 6. 6 liter of mixture is now again taken and replaced with water, n is equal to 2 तक पहुंच गए. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस. ठीक है, रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज दिस. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस ऑपरेशन इज डन इज 2 times. ठीक है ना? अल्कोहल टू वाटर, water, the ratio is 9:16. मतलब alcohol 9x and water is 16x and total is 25x. So your volume is 25x. Your initial quantity was also 25x because you started with only alcohol, and your final quantity is 9x. So this 9x is equal to 25x into 1 minus 6 by 25x. Replacement quantity is 6 and final volume is 20. Overall volume is 25x to the power 2. x ये x गया, 9 by 25 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 by 5 is equal to 1 minus 6 by 25x. तो 6 by 25x is equal to 1 minus 3 by 5, that is 2 by 5. So this is 2 ones are, this is 2 threes are. ठीक है ना? तो 25x इधर आएगा, 5 इधर जाएगा तो 15. x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 15 by 25, that is 3 by 5. 15 by 25, that is 3 by 5. If x is 3 by 5, how many liters of alcohol was there initially? So that is initial quantity पूछी है, तो 25 into 3 by 5, तो ये 15 liters आ जाएगा. ठीक है ना? Next is 20 liters. 20th question. A vessel contains 100 liters of milk and water. है ना? तो it has 100 liters of milk and water. The concentration of milk is 90%. है ना? 90% milk है, तो 90 liters. This is your initial value. है ना? Because we are not starting with pure milk. We are starting with the mixture. 10% of the contents of the vessel are withdrawn. 10% मतलब x की value 10 liters. है ना? And replaced with water with an equal amount of water. The minimum number of times the procedure must be carried out such that the concentration of the milk in the vessel is less than this percentage. ठीक है, the minimum number of times this thing must be carried out. ठीक है, तो पहले 90 liters है, initial value is 90 liters. Your percentage should be 66.66% से कम ना, है ना? Your percentage should be this much less. ठीक है ना? Concentration मतलब, ठीक है, 66.66% concentration of milk, है ना? यहाँ पे लिखता हूँ 66.66% concentration of milk is nothing but 66.66% of 100 liters, है ना? क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम इज ऑफ 100 liters, तो मिल्क कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए? 66.66. दिस शुड बी द फाइनल वैल्यू, इससे कम रहना चाहिए. सो दिस इज 66.66 इज द फाइनल वैल्यू, इससे कम रहना चाहिए. इनटू 1 minus 10 by 100 to the power, how many times this operation should be done कि वो 66.66 liters से कम है. So this is 90 into, if let us say n is equal to 1, so 90 into this is
9/10 टू द पावर 1, तो ये जीरो, ये कितना आया 81 लीटर्स आया, तो n इज इक्वल टू 1 से तो नहीं होगा, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए डालते हैं, तो इट इज 90 इंटू, दिस इज 9/10 का स्क्वायर विच इज 90 इंटू 81/100, तो ये जीरो, दिस कम्स आउट टू बी 72.9, तो n इज इक्वल टू 2 से भी नहीं हो रहा। नाउ लेट अस पुट n इज इक्वल टू 3, तो दिस विल बी 90 इंटू 9/10 का क्यूब which is 90 into 729/1000, तो ये जीरो, ये कितना हो जाएगा 6561/100, that is 65.61, which is less than 66.66. So to take the volume to less than 66.66 percentage, or to take the concentration to less than 66.66 percentage, the operation must be repeated 3 times. सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। सो दिस इज योर एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट ऑन एनी ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.